दिया हुआ था। कल का टॉपिक मैंने क्या रखा था? सिंपल क्वेश्चन था। आज परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न से रिलेटेड कोई टॉपिक है? यस सर, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ओके, चलो फिर ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग नोटबुक लेकर बैठो। Okay, now board is visible to all of you. Yes, sir. Okay, so just I am taking a question which is related to purchase return and sales return, but not given. So I am taking my own question. You should note on the class notebook. Okay, so here Mr. Kishan started a business. ठीक है, started a business. You start writing with cash rupees 5 lakhs. ठीक है, second transaction, out of which he deposited into bank rupees 3 lakhs. ठीक है, 3 लाख रुपए जमा कर दिया बैंक में, डिपॉजिट कर दिया. और थर्ड, bought goods of rupees 30,000 for cash and on credit from Anish rupees 50,000. Done. Fourth, goods costing rupees 20,000 sold at a profit of 25% on cost for cash. ठीक है. फिफ्थ, goods costing rupees 10,000 was sold for rupees 15,000 to Kirti on credit. Sixth transaction, goods returned to Anish rupees 10,000, suppose that. And seventh, goods
returned from Kirti rupees, कीर्ति का गुड्स हम लोग लेते हैं 3000, ठीक है. So put the transaction in accounting equation, ठीक है. So students, you all have written, you can take the screenshot also. Done? Just raise your hand if you have noted it in the notebook or taken the screenshot. Okay, good. John C. Chaurasia, have you noted? Yes. Okay, Rudra has not noted. I think he has not able to show the emojis of raising the hands. I'm not listening. I'm not getting. Vanshika Verma, have you taken? Okay. So well, students, now we are going to start solution. But before starting solution, as you know that we need to check how many assets and liabilities column should be created in the particular transaction. Okay. So I am making it small. Okay. I think this is visible. Everybody, is it visible? Just raise your hand. वैसे क्वेश्चन आप लोग के पास है, you can check from there also. So okay students, so in first transaction you know that the accounting equation is A is equal to L plus C. C is what? Owner's fund, and L means liability which we have borrowed, and asset means the business property. So okay. So in very first transaction, you will see that Kishan is the owner of the business, is going to start a business with cash rupees 5 lakh. So this means you will be receiving a cash. Cash will be written in asset column. And who is giving? Dekho beta. As we know that the accounting equation is based on the dual aspect or duality aspect. Means each and every transaction having two effect. So दो sides होते हैं इसके. देखो एक साइड तो कैश हो गया, कैश यू आर रिसीविंग, बट फ्रॉम वेयर दिस कैश इज कमिंग, यू शुड नोटिस इट. So you will check in the question, the Kishan is giving, because Kishan is, why Kishan is giving? Because Kishan is the owner and is going to start a business. So this is owner's fund. Okay, Kishan is giving you cash rupees 5 lakh. So Kishan's money will be treated as a capital. So you will write a column for capital. Okay. Now second, out of which यानी 5 lakh rupees में से he deposit into bank rupees 3 lakh. So bank balance is also a part of assets. Okay. When cash will deposit, the bank will increase and cash will decrease. So cash already has been created. So only you need to create for bank. क्योंकि बैंक के लिए आप रिकॉर्ड करने के लिए बैंक का कॉलम आप बनाओगे और वो एसेट साइड में होगा. आपको पता है कि एसेट्स में आता है. थर्ड, बॉट गुड्स ऑफ रुपीज 30,000. ठीक है, आपने गुड्स खरीदा, तो गुड्स कहाँ दिखाते हैं हम लोग? एसेट्स में. तो गुड्स को हम लोग जनरली स्टॉक के नाम से भी रिकॉर्ड करते हैं, तो अकाउंटिंग इक्वेशन स्पेशली. So if you are buying the goods for cash, so cash will decrease. So already have been created for cash. So only goods column will be created. And in the same question you will see, and it is saying on credit from Anish on rupees 50,000. So again you are buying the goods. The goods already has been created, but you are buying these goods on credit. So when you purchase the goods on credit, it will be a liability named creditor. ओके, जब हम गुड्स उधार खरीदते हैं किसी पर्सन से, सप्लायर से, तो दैट सप्लायर विल बी नोन एज क्रेडिटर एंड विल बी पुट इन अंडर द हेडिंग ऑफ लायबिलिटी, राइट. नाउ गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 sold at a profit of
25% on cash. So you are selling goods for cash. So cash already you have created and goods already have been created, and you are selling it on profit. So profit will be adjusted into the capital. As you know कि जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस का ओनर को मिलेगा और जो लॉस होगा वो ओनर ही बियर करेगा. तो जो भी प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में प्लस होगा और लॉस कैपिटल से माइनस होगा. राइट. नेक्स्ट, goods costing rupees 10,000 was sold for rupees 15,000 to Kirti on credit. यहाँ पर भी आप गुड्स बेच रहे हो तो गुड्स का तो कॉलम बच्चा बना हुआ है, लेकिन आपने कीर्ति को उधार बेचा क्रेडिट पे. तो when we sell goods on credit to customers, so customer will be treated as debtors and debtor is a part of assets. Okay. And profit credit sale will be added to the capital account. And now goods return to अनीश, यानी आपने अनीश से गुड्स जो उधार खरीदा था, जो क्रेडिटर के कॉलम में लिखा हुआ था अनीश का नाम, आपने उसको रिटर्न कर दिया. तो रिटर्न कर दिया तो आपका गुड्स माइनस हो जाएगा क्योंकि आपके पास से गुड्स जाएगा और क्रेडिटर जितने रुपए का था उसमें से उतने रुपया माइनस कर देंगे क्योंकि अब अनीश को हमें कम पेमेंट करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि सिंपल सा चीज़, अनीश से आपने गुड्स 50,000 का उधार खरीदा, यानी यहाँ 50,000 का उधार खरीदा था और उसको आपने 10,000 का वापस किया, तो आप उसको 10,000 रुपये लेस करके देना पड़ेगा ना. तो वो क्रेडिटर से माइनस हो जाएगा और गुड्स से माइनस होगा क्योंकि गुड्स आपके पास स्टॉक से कम हो जाएंगे जब आप रिटर्न करोगे तो. नेक्स्ट एंड लास्ट, गुड्स रिटर्न फ्रॉम कीर्ति. ठीक है, ऑफ रुपीज़ 3,000. तो कैसे होगा? तो आप देखो कि 3,000 रुपीज़ का कीर्ति ने गुड्स रिटर्न किया. तो कीर्ति कौन है? कीर्ति तुम्हारी कस्टमर है, डेटर, जिसको उधार बेचा था. तो इसने गुड्स वापस किया तो गुड्स में तो प्लस हो जाएगा, लेकिन उतने रुपए से कीर्ति भी माइनस होगी. अब इसके साथ एक ट्रीटमेंट है कि कीर्ति को जब हम गुड्स सेल करते हैं तो कॉस्ट प्राइस पे नहीं सेल करते हैं, प्रॉफिट पे सेल करते हैं. तो वो रिटर्न करेगी तो प्रॉफिट के रेट से ही करेगी, बिकॉज उसको तो पता नहीं है कि कितना रुपया प्रॉफिट है, वो तो हमें पता होता है क्योंकि हमने सेल किया है. तो कीर्ति तो सीधे सीधे 3,000 15,000 का गुड्स बेचा था, तो उसमें से 3,000 रुपये के हिसाब से जिस रेट पे सेल किया था उस रेट पे हमको वो दे देगी, इसमें से 15,000 में से 3,000 का. बट हमारे पास जो गुड्स आएगा वो डेटर में से तो 3,000 माइनस होगा क्योंकि कीर्ति को जब हम सेल किए थे तो 15,000 लिखे होंगे और वापस करेगी 3 तो 3 माइनस कर देंगे, डेटर कम हो जाएगा क्योंकि अब पैसा कम लेना होगा. लेकिन जो गुड्स में प्लस करेंगे तो 3,000 नहीं प्लस करेंगे क्योंकि कीर्ति को जब सेल किया था तो 10,000 रुपये कॉस्ट प्राइस का गुड्स 15 में सेल किया था. तो जब वो रिटर्न कर रही है तो उसकी भी तो कॉस्ट प्राइस कम होगी, तो गुड्स में हमेशा कॉस्ट प्राइस लिखेंगे और इसका जो डिफरेंस रहा होगा वो हमारा लॉस हो जाएगा. यानी पहले जब 5,000 का प्रॉफिट था तो कैपिटल में जोड़े थे, जब रिटर्न कर दी तो उतना प्रॉफिट भी माइनस होगा. प्रॉफिट माइनस करने के लिए रिवर्स एंट्री हो जाएगी कैपिटल से. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे होगा. तो अब खत्म हो गया. सो देखो आप कितने कॉलम आते हैं, कैश, बैंक, गुड्स, डेटर, 4 कॉलम इधर है एंड क्रेडिटर एंड कैपिटल 2 इधर है. ठीक है, बाकी का ट्रीटमेंट सोल्यूशन के टाइम आपको और अच्छे से समझ में आएगा. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. ओके, so here will be serial number, then transactions, and then assets में आप बना लो कॉलम कैश, बैंक and stock, and then debtors, and then creditors, and then capital. So here you will be writing liabilities plus capital is equal to assets. Okay, तो आई होप स्टूडेंट दिस इज क्लियर टू ऑल यू कि कैसे होना है. फॉर्मेट पहले आप लोग बना लो सभी लोग कॉपी पे, ताकि आप साथ साथ लिख सको. ठीक है,
बना लो सभी लोग। ठीक है, तो in serial number, transaction number 1, so you will be writing business started with cash rupees 5 lakhs. ओके, सो आप स्टूडेंट्स ये देखो कि 5 लाख रुपए से आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, मतलब ओनर स्टार्ट कर रहा है, तो आपके पास पैसा आ रहा है बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है? 5 लाख रुपीज, राइट। बैंक में कोई चेंज नहीं है, पहले ट्रांजेक्शन में बैंक का नाम भी नहीं था इन सारी चीज़ों का, ठीक है, क्रेडिटर में भी नहीं। अब दूसरी चीज़ देखो कि आपको याद रखना है कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो साइड्स, दो एस्पेक्ट्स होते हैं। पैसा आ रहा है नो डाउट, बट ये कहाँ से आ रहा है? जस्ट यू हैव टू थिंक। सो ही इज गिवन, दिस अमाउंट हैज बीन गिवन बाय ओनर, एंड ओनर्स मनी, यू नो दैट in the second chapter I have taught you people, the amount invested by owner to start a business is called capital. So capital create हो रहा है, so capital side you will be writing 5 lakhs. Okay, so first transaction is okay. जितने लोग हैं सभी को समझ में आ रहा है? फर्स्ट just raise your hand. Okay, good. Now second, so you will see second transaction is saying out of which he deposited rupees 3 lakh into the bank. So you will write here deposited into bank rupees how much? 3 lakhs, राइट। सो अब बताओ कि अगर बैंक में पैसा जमा करोगे तो कहाँ से करोगे? यानी कैश में से पैसा निकलकर बैंक में जाएगा, है ना, यानी कैश में माइनस होगा, राइट। सो आप कैश में से क्या करोगे? 3 लाख माइनस करोगे, एंड यू विल ऐड 3 लाख इन बैंक कॉलम। ओके, बैंक में प्लस हो जाएगा। अब इधर कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। सो आप देख लो, बड़ा सिंपल है, कोई चेंज नहीं, यानी जिस अमाउंट से एसेट्स, ये दोनों ही एसेट्स है कैश और बैंक, तो एक एसेट्स माइनस हो रहा है और सेम अमाउंट से दूसरा एसेट्स प्लस हो रहा है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का ये प्रॉपर्टीज है कि अगर कोई एसेट प्लस हो रहा है तो लायबिलिटी भी प्लस हो रहा है होगा, अगर एसेट माइनस हो रहा है तो लायबिलिटी भी माइनस होगा। बट अगर कोई एसेट्स प्लस हो रहा है और कोई दूसरा लायबिलिटी प्लस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब सेम अमाउंट से कोई दूसरा एसेट्स माइनस हो जाएगा, या कोई एसेट्स माइनस हो रहा है तो दूसरा कोई एसेट प्लस हो जाएगा सेम अमाउंट से। एनी हाउ इट मस्ट बी इक्वल। ओके, तो चल दो हम लोग अब इक्वेशन बनाते हैं। देखो हर यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो हो गए, इसके बाद अब हम लोग चेक करेंगे फर्स्ट 2 ट्रांजेक्शन के बाद। तो हियर विल बी राइटिंग इक्वेशन। जब आप हर बार इक्वेशन बनाने लगोगे तो फिर आपको चेक करने की जरूरत नहीं, बार बार हर बार खुद ही बता देगा आपको कि इक्वेशन आपका करेक्ट है या नहीं। सो देखो 5 लाख कैश था, 3 लाख तुमने डिपॉजिट कर दिया, तो कितना बचा? 2 लैक्स, और बैंक में कितने हो गए? 3 लाख है, ठीक है। सो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, और यहाँ कितने हुए? 5 लाख, ठीक है। सो आप चेक कर लो, 2 लाख प्लस 3 लाख इज इक्वल टू 5 लाख, सही है। सो अब हम लोग थर्ड पे आते हैं। तो थर्ड पे है बॉट गुड्स। बॉट गुड्स फॉर कैश रुपीज, एंड कितने का खरीदा है, और उसके बाद क्रेडिट पे भी खरीदा है ना। सो लेट्स चेक कितना है। सो देखो बॉट गुड्स फॉर कैश 30,000 है और ऑन क्रेडिट 50,000 है, यानी इससे हमने खरीदा है उधार। सो बॉट गुड्स फॉर रुपीज कैश रुपीज 30,000 एंड ऑन क्रेडिट
फ्रॉम अनीश ₹50,000। ओके, तो अब सोचो आप कि आपके पास कुल गुड्स कितना आ रहा है। 30,000 का आपने कैश खरीदा और 50,000 का उधार, यानी कुल गुड्स आपके पास, टोटल गुड्स यू आर बाइंग फॉर 80,000। इजंट, सॉरी यहाँ तो बैंक का कॉलम है, यहाँ पर आ जाएगा। यानी गुड्स आपने टोटल जो परचेज किया है वो 80,000 का गुड्स परचेज किया है, राइट। यानी स्टॉक थोड़ा सा ये ऊपर कंजस्टेड है, सो आप देख लोगे। सो थर्ड नंबर पे है, तो बैंक में कोई चेंज हुआ नहीं। पेमेंट किससे किया है आपने और कितना किया है, तो आपने 80,000 में से 30,000 का पेमेंट कैश से किया है, यानी कि आपने 30,000 रुपये का गुड्स खरीदा है कैश। सो आपका कैश कम होगा। सो आप देखो 30,000 रुपया एसेट्स में से माइनस हुआ, लेकिन दूसरा एसेट प्लस हुआ 80,000 से, यानी हमारा इक्वेशन इक्वल नहीं है। तो 80 से क्यों प्लस किया और 30 क्यों माइनस हुआ, क्योंकि 30,000 का ही कैश खरीदा है। 50,000 का आपने क्रेडिट पे परचेस किया। तो आपको पता है व्हेन वी परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर, देन सप्लायर विल बी ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर एंड क्रेडिटर विल बी पुट अंडर द हेडिंग ऑफ लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में देखो आपका 50,000 रुपए से क्रेडिटर क्रिएट होगा। सो अब हो गया दोनों साइड, यानी यहाँ पर आपका 50,000 प्लस हो रहा था और इधर भी 50 हो गया प्लस। तो अब कोई चेंज नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग फिर से इक्वेशन चेक करेंगे कि सही है कि नहीं। सो हियर योर कैपिटल अमाउंट इज सेम, creditor account has changed with 50,000 and debtors no change, stock has been increased by rupees 80,000, bank account no change, and capital cash account has been changed, so 1,70,000। ओके, बट स्टूडेंट आप नोटिस करोगे यहाँ मैंने फर्स्ट टू ट्रांजेक्शन के बाद इक्वेशन लिखा था, यहाँ पर अब इक्वेशन चेंज हो गया, तो हम लोग लिखेंगे न्यू इक्वेशन। ओके, सो देखो फर्स्ट टू ट्रांजेक्शन के बाद होता है इक्वेशन, उसके बाद हर ट्रांजेक्शन के बाद हम लोग न्यू इक्वेशन प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि पहले ट्रांजेक्शन के बाद इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं होती, तो खुद ही इक्वेशन होता है। तो दूसरा जब पास करते हैं तो फिर इक्वेशन चेक करते हैं, फिर हर एंट्री के बाद हम लोग न्यू इक्वेशन प्रिपेयर करेंगे। सो आई होप कि यहाँ तक थर्ड ट्रांजेक्शन इज क्लियर। चलो अब हम लोग फोर्थ पे आते हैं। ओके, सो फोर्थ ट्रांजेक्शन, इसको हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर लें। Okay, so fourth transaction student, you will see in your question what is written, anybody, कौन बोलेगा फोर्थ क्या है। अनीश Sir, बताओ। good costing rupees 20,000 sold at a profit of 25% on cash, on ओके, cost for cash. ठीक है, वेरी गुड। सो हियर विल बी राइटिंग गुड्स कॉस्टिंग rupees 20,000 was sold at profit of 25%, राइट। सो ऑन कॉस्ट है, तो कॉस्ट आपका 20,000 है, तो देखो मैं यहाँ वर्किंग करके दिखा दे रहा हूँ आपको, वर्किंग पहले बता दे रहा हूँ, इरेज कर देंगे अभी हम। सो आपको यू नो दैट कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ इज 20,000 एंड प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इज कॉस्ट पे 25% का प्रॉफिट है, ठीक है।
सो यहाँ आप कैलकुलेट करेंगे तो 20,000 टू 25%, तो कितना आ जाएगा 5,000 आ जाएगा। सो अब इस 5,000 को इसमें प्लस कर दो, यानी कि 25,000। तो 25,000 क्या आ गया आपका सेलिंग प्राइस आ गया, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपने कैश सेल किया तो आपके पास पैसा कितना आएगा, आप सोचो खुद से, आप कितने का सेल कर रहे हो 25,000 का, ठीक है। बैंक में कोई चेंज नहीं, और यहाँ पर जो है आपका वो गुड्स का कॉलम है 80,000, तो इसमें से आपने कितने रुपए का गुड्स कॉस्ट प्राइस का सेल किया 20,000 का, तो ये माइनस होगा ये, और इसको भी हम प्लस का साइन नहीं लगाएंगे, यहाँ माइनस कर देते हैं हम, ठीक है 20,000। सो अब आप खुद से बताओ, आपके पास 25,000 रुपये आए और आपके पास से गुड्स जो गए वो 20,000 रुपये के 20,000, तो आपको क्या हुआ, यहाँ प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का 5,000 को, तो प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए ओनर को। तो ओनर का पैसा जो है कैपिटल है उसमें हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, और कहीं कोई चेंज नहीं हुआ, राइट। सो अब हम लोग का ये सोल्यूशन हो गया यहाँ तक। अब इसको इरेज कर दे वर्किंग में, तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से न्यू इक्वेशन प्रिपेयर करेंगे जैसा कि हर बार करते आए हैं। ठीक है, सो अब यहाँ आप लोग ऐड करेंगे, 1,95,000 हो जाएगा कैश आपका, बैंक एज इट इज़ है 3 लाख, क्योंकि बैंक का कोई और ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ। यहाँ कितना आ जाएगा 60,000, ठीक है, और यहाँ कोई चेंज नहीं है, और यहाँ है 50,000, और यहाँ है 5,05,000, राइट। सो ये हो गया। उस यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, न्यू इक्वेशन। अब आते हैं फिफ्थ पे। सो फिफ्थ में क्या लिखा है, ट्रांजैक्शन कौन पढ़ेगा, यस एनीबॉडी, जॉनसी चौरसिया, यस सर। हाँ बोलो, ट्रांजैक्शन कोई भी एक बोलो। सब लोग शांत हो गया, चलो मैं नाम ले लेता हूँ। कृष्णा दधेच, आप बोलो। Sir, goods costing rupees 10,000 was sold for rupees 1,500 to Kirti on credit. ओके गुड, थैंक यू। सो यहाँ पे कह रहा है कि गुड्स कॉस्टिंग rupees 10,000 was sold to Kirti for rupees 15,000। तो आपने देखो, और कीर्ति का नाम है यानी उधार बेचा है आपने क्रेडिट, तो आप जब क्रेडिट पे सेल करते हो तो पैसा तो आएगा नहीं, है ना, पैसा पे कोई चेंज नहीं है, तो पैसे में आपका कुछ नहीं हुआ, और बैंक से भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। लेकिन गुड्स आपने सेल किया कॉस्ट प्राइस 10,000, तो गुड्स तो आपका श्योर कम होगा, ठीक है। लेकिन आपने उधार बेचा है, तो उधार बेचा है तो आपको पैसा लेना है कीर्ति से, कितना लेना है 15,000, तो ये डेटर हो जाएगी कीर्ति, है ना, जब हम किसी को सेल करते हैं क्रेडिट पे तो वो। तो अब बताओ, ये भी एसेट्स है ये भी एसेट्स है, तो आपने स्टॉक जो एसेट्स है उसको माइनस किया और डेटर जो एसेट्स है उसे प्लस किया 15 से, दोनों सेम अमाउंट से नहीं है, यानी आपको 5,000 का प्रॉफिट हुआ यहाँ, है ना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 10,000 सेल किया 15 पे, तो 5,000 का प्रॉफिट हुआ, तो किसको मिलेगा ओनर को, राइट। तो ओनर की कैपिटल में प्लस कर देंगे। अब हम लोग फिर न्यू इक्वेशन बनाएंगे। सर, यस बेटा बोलो। सर ये जो 15,000 सर जो डेप्टर में गया, सर ये कैसे गया, एक बार सर बता दें। अच्छा देखो बेटा, क्वेश्चन पढ़ो, उसमें क्या लिखा है, कैश सेल की हो या क्रेडिट पे।
क्रेडिट। क्रेडिट पे सेल किए हो, तो पैसा तुम्हारे पास आएगा या नहीं आएगा? सर बताओ। पैसा कैसे आएगा? हाँ, पैसा कैसे आएगा, वेरी गुड। तो हमने देखो पैसे में कहीं लिखा है 15,000, नहीं लिखा है ना? कैश वाला कॉलम पहला कॉलम में, पता है ना? 195 वाला, यहाँ जीरो लिखा है, यानी कैश पे कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन गुड्स आपके गोडाउन से कम हो रहा है 10,000 का, गुड्स जा रहा है जो 60,000 का था उसमें से 10,000 कम हो गया। और ये वाला जो कॉलम था 15,000, ये डेटर के नाम से आपने बना रखा है। तो डेटर क्या होता है? डेटर उस कस्टमर को कहते हैं जिसको हम उधार बेचते हैं गुड्स, ठीक है? यानी कीर्ति को हमने उधार बेचा तो कीर्ति के नाम के आगे डेटर लगा देते हैं हम लोग। तो डेटर का मतलब होता है कि वो हमारा एसेट से हमें पैसा लेना है उससे। आया समझ में? यस। Yes, sir. जैसे ऊपर क्रेडिटर नहीं लिखा था, अनिश से गुड्स खरीदा, आपने परचेस किया तो क्रेडिटर में लिख दिया, क्योंकि पैसा तो आपने दिया नहीं उसको, तो क्रेडिटर हो गया। और उसी तरह जब आप सेल करते हो क्रेडिट पे, तो वो आपके लिए डेटर, डेटर यानी कि ऐसा व्यक्ति जिससे हमें पैसा लेना है, ठीक है? समझ आया? यस सर। ठीक। Yes, sir. तो 15,000 यहाँ होगा, और यहाँ पर 50,000 है, और यहाँ पर 5,10,000, ठीक है? तो दोनों साइड इक्वल आ रहा होगा, आप चेक कर लोगे तो दोनों साइड इक्वल ही आएगा। अब आगे 6 ट्रांजेक्शन पे आते हैं हम लोग। चलो ठीक है। सो 6 पे आप लोग फटाफट लाइन ड्रा कर लो अपने पास, अगर लाइन ड्रा है तो हम लोगों का तो ठीक है। ठीक। सो 6 पे क्या कह रहा है? कौन बताएगा हमें? Who will tell about 6 transaction? जॉन्सी बताओ बेटा, आप उसमें बता रही थी, हम दूसरे से पूछ लिए। यस बोलो। Sir, goods returns to Anil's यस, rupees 10,000. वेरी गुड। सो इस क्वेश्चन में आपने अनीस को गुड्स रिटर्न कर दिया है ना? तो आप देखो कि अनीस कौन है? अनीस से आपने गुड्स उधार खरीदा था, यानी परचेस किया था। तो गुड्स रिटर्न टू अनीश। सो ये कौन सा रिटर्न कहलाएगा? परचेज रिटर्न, क्योंकि आप रिटर्न कर रहे हो ना। जब हम लोग रिटर्न करेंगे अनीश को, तो अनीश से हमने गुड्स ऊपर खरीदा था 50,000 रुपये का उधार, तो अनीश को अब हम वापस कर रहे हैं, तो वापस करेंगे तो हमारे पास से गुड्स जाएगा, गुड्स जाएगा, तो गुड्स माइनस करेंगे, कितने रुपए का रिटर्न किया हमने? 10,000 का। तो अब ये बताओ कि अनिल से गुड्स 50,000 का खरीदा था, तो ये देखो 50,000 रुपया उसका हमारे ऊपर बकाया चल रहा है क्रेडिटर के नाम से। अब हमने उसको 10,000 का गुड्स वापस कर दिया, तो अब हमको उससे 10,000 रुपया कम देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? 10,000 रुपये माइनस कर देंगे उसके क्रेडिटर वाले अमाउंट से, ठीक है? समझ में आया सभी को ये? जस्ट बताइए भाई, हम इसको रुको अच्छे से लिख देते हैं। तो -10,000, क्योंकि अनीस को 50,000 रुपये देने थे, और चूंकि अनीस का हमने गुड्स वापस कर दिया 10,000, तो अब 50,000 में से 10 घटा दो, 40,000 देने होंगे उसको, ठीक है? तो हम लोग अब यहाँ पर न्यू इक्वेशन बनाएंगे। सो न्यू इक्वेशन, $1,95,000 कैश नो चेंज, बैंक नो चेंज, गुड्स में चेंज हो गया, गुड्स आपके 40,000 रुपये के हो गए, क्योंकि आपने वापस कर दिया कुछ गुड्स। डेटर अभी पैसा बाकी है, नहीं मिला, तो 15,000 का 15,000 रहेगा। अब अनीस को हमें 10,000 कम देना होगा, 40,000 रुपये, और 5,10,000 हमारा कैपिटल है। ओके, सो यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? स्टूडेंट्स, वंशिका, दिव्या, समझ आ रहा है? Yes, बेटा, sir.
Okay, good. So okay, Kirti, now you will tell the last transaction. Goods returned from Kirti rupees 3000. ओके गुड। तो बेटा अब यहाँ पे कह रहा है गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम कीर्ति, यानी कीर्ति से वापस आया। तो क्यों कीर्ति से वापस आया? क्योंकि कीर्ति को हमने उधार बेचा था, यानी ये किस प्रकार का रिटर्न है? सेल्स रिटर्न है ना। ऑलरेडी आप सेल किए थे ऊपर 10,000 रुपए का गुड्स 15,000 में किया था आपने फिफ्थ ट्रांजेक्शन में, आप चेक कर लो। तो कीर्ति अब क्या कर रही है कि कीर्ति को तो पता नहीं है गुड्स कितने का था, कीर्ति तो 15,000 रुपए वाले प्राइस को जान रही है ना, जो डेटर को आपने सेल किया है। कीर्ति को तो बस पता है कि कुल गुड्स का कीमत 15,000 है, उसमें से 3,000 का गुड्स आपको वो रिटर्न कर रही है। सो लिखेंगे गुड्स रिटर्न्ड बाय कीर्ति। सो अब बताओ, जब हम कीर्ति को 10,000 रुपए का गुड्स 15,000 में बेचे थे तो 5,000 प्रॉफिट हुआ था, और वो पूरा का पूरा प्रॉफिट देखो हम यहाँ ऐड कर दिए थे। लेकिन अब उसी में से कीर्ति जब 3,000 का गुड्स वापस करेगी 3,000 का, सो इफ शी इज रिटर्निंग गुड्स ऑफ रुपीज 3,000, सो दैट 3,000 इज नॉट कॉस्ट ऑफ द गुड्स, दैट इज द सेलिंग प्राइस, है ना। सो सेलिंग प्राइस है, बट वी हैव टू record the return of the goods into the stock, and stock always will be written as the cost price. Okay, so आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है? Now this is your responsibility to calculate the cost price of the goods returned by Kirti. And one thing more, जब आपने 10,000 का फुल गुड्स सेल कर दिया था 15 में, तब आपको 5,000 का प्रॉफिट हुआ था। अब वो रिटर्न कर रही है तो आपका प्रॉफिट भी तो कम होगा, तो कैपिटल से प्रॉफिट भी माइनस करेंगे। जितने रुपए का गुड्स रिटर्न होगा उसमें कितना कॉस्ट है और कितना प्रॉफिट। आपको मालूम है कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट और प्लस प्रॉफिट होता है। तो आपने 10,000 रुपए का गुड्स 5,000 रुपए प्रॉफिट ऐड करके 15,000 रुपए में उसको सेल किया था। अब वो उसी सेलिंग प्राइस का 3,000 का रिटर्न कर रही है, तो कितना कॉस्ट है और कितना प्रॉफिट है ये आपको अलग अलग करना है, ठीक है, क्योंकि वो तो आपको सेलिंग प्राइस के हिसाब से दे रही है। सो देखो स्टूडेंट कैसे निकालेंगे। तो आपने जो गुड्स सेल किया था 15,000 का, तो उसमें प्रॉफिट कितना था? 5,000 था, ठीक है। 1 मिनट फ्रॉम योर स्टूडेंट। लो, हाँ हाँ बोलो। हाँ ये मैंने चेक किया, बताने की हम बात करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, सो आप देखो यहाँ 5,000 वाज द प्रॉफिट अमाउंट, जबकि सेलिंग प्राइस 15,000 था। सो अब आप जब रिटर्न 3,000 रुपए का कर रहे हो, मतलब आ रहा है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, या सॉरी उस पर प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। सो प्रॉफिट कितना होगा, तो हम 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5, और 5 से इसको कैंसिल कर दिया तो 1,000। तो ये पता चल गया कि 3,000 रुपये में 1,000 रुपये हमारा प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितना होगा? 2,000 होगा। कितने लोग को पहले ये सर कैलकुलेशन समझ में आया बताओ? नहीं तो मैं फिर से बताऊँ, इसी को दोबारा रिपीट करो। यस सर एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है। सो देखो आप लोग अच्छे से फिर से ये देखो, अर्थमेटिक जिसका जिसका स्ट्रॉन्ग होगा बेटा, अंक गणित जिसे कहते हैं अर्थमेटिक। देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या मालूम है, दोनों गुड्स का सेलिंग प्राइस, जो सेल किया उसकी भी 15,000 थी और जो रिटर्न आया उसका भी, ठीक है। बट आपको बेस चाहिए प्रॉफिट निकालने के लिए, तो जो सेल किया उसका कॉस्ट और उसका प्रॉफिट इतना था, ठीक है। और जो रिटर्न आ रहा है उसका कॉस्ट नहीं पता है, और ना तो प्रॉफिट पता है, लेकिन जो सेल किया उसका तो प्रॉफिट पता है ना हमें। तो 15,000 रुपये का जब सेल किया तो प्रॉफिट कितना हुआ? 5,000। यानी अगर हमारा देखो कभी भी निकालना हो, प्रॉफिट पता करना हो, तो प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू सेलिंग प्राइस ऑफ रिटर्न गुड्स, रिटर्न गुड्स। आप ये लिख लो जो दिया होगा बेटा। अगर नीचे सेलिंग प्राइस पता है दोनों का, दोनों में कॉमन सेलिंग प्राइस जो गिवन है उसको बेस ले लेंगे, ठीक है। जो दो आइटम दिया है देखो,
ओरिजिनल गुड्स का भी और चेंज वाले गुड्स का भी जो सेलिंग प्राइस कॉमन है वो बेस हो जाएगा। अब तुम्हें फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट। तो जब प्रॉफिट पता करना है तो प्रॉफिट ऊपर कर लो कि जितने रुपए का सेल करके प्रॉफिट इतना था, या यूनिटरी मेथड से मैं बता देता हूँ। चलो ये समझ में आया कि नहीं कैसे निकलेगा? यूनिटरी देख लो, यूनिटरी मेथड आप लोग पढ़े होंगे। इफ सेलिंग प्राइस इज ₹15,000 देन प्रॉफिट कितना था, 5,000 था। सो इफ सेलिंग प्राइस इज ₹3,000 देन प्रॉफिट कितना होगा? सो प्रॉफिट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5,000 जो ऊपर है, ऊपर वाला इसको लिख लेंगे और उसके नीचे 15,000 और जो 3,000 ये कैलकुलेट करना उसको हम इधर कर लेंगे। ठीक है, तो अब सॉल्व करो तो प्रॉफिट आ जा रहा है 1,000 रुपये। तो ये तुम्हें पता हो गया कि प्रॉफिट अगर 1,000 है और सेलिंग प्राइस 3,000 है तो कॉस्ट कितना होगा हमारा, 2,000 होगा। समझ आ गया ये? यस बेटा आप लोग बोलो, जस्ट से Yes, sir. यस सर। ओके। तो चलो हम इसको इरेज करते हैं। ये पता हो गया कि आप लोगों को प्रॉफिट और कॉस्ट कितना कितना है। चलो देखते हैं अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सो ट्रीटमेंट देखो, आप जब गुड्स रिटर्न आया तो पैसे में तो कोई चेंज नहीं होगा, ना तो बैंक में चेंज होगा। गुड्स आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि उसने गुड्स वापस किया। तो 3,000 सेलिंग प्राइस का वापस किया, लेकिन उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 2,000। तो हम कितना प्लस करेंगे स्टॉक में, 2,000, क्योंकि स्टॉक में हमेशा कॉस्ट प्राइस, जब सेल करते हैं तो भी कॉस्ट प्राइस और रिटर्न आता है तो भी। अब कीर्ति के अकाउंट से कितना माइनस होगा, कीर्ति 15,000 रुपये लेना था, अब उसने 3,000 रुपये का गुड्स वापस किया, तो उसके अकाउंट से 3,000 रुपये डेटर में से माइनस हो गए। अब ये बताओ कि 3,000 यहाँ माइनस किया लेकिन प्लस किया 2,000, तो 1,000 का लॉस, यानी 1,000 वो कहाँ जाएगा, कैपिटल से माइनस होगा, क्योंकि हमने 10,000 के गुड्स पे 5,000 प्रॉफिट किया था ना। अब तो वापस हो गया, तो इतना रिटर्न हो जाएगा, तो प्रॉफिट भी रिटर्न हो जाना है ऑब्वियसली। जब कोई गुड्स वापस करेगा तो तुम्हारा प्रॉफिट भी तो कम होगा। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब इसके बाद कोई ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट, कोई ट्रांजैक्शन है, नहीं है? तो चलो हम लोग यहीं पे फाइनल इक्वेशन कर देंगे और बैलेंस शीट तो आप लोग अपने से बना लोगे। बैलेंस शीट में मालूम है ना, लायबिलिटी साइड में कैपिटल और लायबिलिटी क्रेडिटर दोनों लिख देंगे फाइनल अमाउंट, और एसेट्स में कैश, बैंक और स्टॉक और डेटर का वैल्यू, और दोनों साइड चेक कर लोगे कि इक्वल है कि नहीं, और होना भी चाहिए, अभी पता चल जाएगा, फाइनल इक्वेशन लिखते ही पता चल जाएगा। सो देखो आप यहाँ 1,95,000 प्लस 3 लाख प्लस 42,000 प्लस 12,000 इक्वल टू 40,000 और प्लस 5,09,000। ठीक है, तो देखो ये आपका फाइनल इक्वेशन है। बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं आपको मालूम होना चाहिए, बताया था हमने। बैलेंस शीट जब बोला जाएगा तो प्रिपेयर करेंगे, नहीं बोला जाएगा तो नहीं प्रिपेयर करेंगे। ये डेट का है। ठीक है, सो देखो एसेट साइड इधर होता है और इधर होता है लायबिलिटी। ठीक है, तो इधर कौन कौन से एसेट्स है आपके पास, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स। ठीक है, इस साइड आपके है क्रेडिटर्स एंड कैपिटल। ठीक, सो क्रेडिटर कितने का है, 40,000 का, कैपिटल कितने का है, 5,09,000 का। ठीक है, कैश कितने का है, सो 1,95,000, और ये कितने का है बैंक, 3 लाख।
और 42,000 का स्टॉक है और 12,000 का डेटर। अब आप लोग टोटल करोगे दोनों साइड, तो आपका अमाउंट 5,49,000 आना चाहिए बोथ, इधर भी और इधर भी आएगा। आप चेक कर लेना। हाँ। देखो बैलेंस शीट भी मैंने बता दिया कि कैसे बनेगा, दोनों पैरेलल एक साथ बराबर होना चाहिए। ये आपका हो गया C प्लस L, ये हो गया A, दोनों साइड इक्वल है। सो क्या स्टूडेंट समझ में आ गया यहाँ तक क्लास आज? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, you will do practice at home. Is there any query you will ask and watch the video what I have said yesterday? ठीक है, that will make you more clear and subscribe the channel, जिससे कि आपको बार बार जब मैं वीडियो अभी तो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, जब भी अपलोड करेंगे तो मिलता रहेगा आपको। ठीक है, ओके बाय बाय। Good day, sir. ओके बाय, हैव अ नाइस डे बेटा। Thank you, sir.